Hi everyone. I started this YouTube channel last year to make videos about movie reviews. I started it with one video, created a few, but was not able to post any of those. So I don't know how much I am going to cut in this and how much I am going to post in this, but I want to be consistent because this is something which I have wanted to do for so long and ignore the pile of clothes in the background. Okay, I think now it's good. Okay, so I am going to review Desi Bling, which I watched last weekend. So this was something which was being recommended on my reels and on YouTube, and my husband also recommended that this is something which is coming on his feed daily. So first thing I would like to say that shows like Desi Bling, Dubai Bling, and a lot of other shows has a separate genre which is brain rot. सो जब आपको कुछ ऐसा कंटेंट देखना है जहाँ पे आपको भूल जाना है कि कुछ सोचना है, देर इज़ सम लॉजिक बिहाइंड इट, देर इज़ सम साइंटिफिक थिंग बिहाइंड इट, जस्ट फॉरगेट इट एंड आप उस शो को ही देखो एंड यू आर इंजॉइंग इट, देर इज़ नो सेंस बिहाइंड इट. But there is that kind of genre and there is that kind of content which is being produced. So I think yes, mm, good watch. We watched 8 episodes of it, and I asked my husband also to watch with me. He is kind of somebody who is more into global content, and he watches all kind of good form of content. And trust me, he also started watching with me, and he also got hooked. And we finished all the 8 episodes together. So बहुत लोगों ने रिव्यू किया है, सो देर इज़ नथिंग न्यू दैट आई वुड वांट टू से. तो सबसे पहले तो वी आर गेटिंग इंट्रोड्यूस टू दीज पीपल जो कि दुबई ब्लिंक की सारी स्टार कास्ट है, जैसे कि देर इज़ तेजस्वी प्रकाश हु इज़ ऑफ कोर्स वेरी वेल रिनाउड टीवी एक्ट्रेस, एंड देन उसका बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा. आई हैव नेवर फॉलोड देयर बिग बॉस सीजन, हाउएवर उनका हाइप बहुत है एंड आई रीड अ लॉट जिसमें लगता है कि हाँ उनका PR क्यूरेटेड कपल स्ट्रैटेजी है, ये वो जो भी है. Fine. And then the person, actually the character which remained with me for so long was Pamela, so called Pamela by Satpal. I mean, Satpal calls her Pamela, which is quite funny. And then there is this lady, Tejasvi Prakash. She calls this person Pamela as Pammi. And then we are introduced to this. Can you believe that I have 40 kgs of gold? Bindaji, okay? And she says that she has not married Satinder Satpal for money. Obviously, fine. It's okay if we marry for money. That's also fine. We accept that. And then we are introduced to these twin sisters, and I got some information about them. Not like I am kinds of jasus and would do some research behind the cast, but I have a habit of reading something on Reddit. So whenever I watch something, somehow I research it on Reddit, and lot of posts start getting recommended on my feed. So I read about them कि उनके father Parsi हैं and their mother is from Pakistan. So yeah, so basically both of them were real, very Gen Z, like plastic is fantastic kind of vibe. And then it was entertaining to watch, and their outfits were also nice, I would say. And then we have this person who is Danub's chairman and his family. And who else is left? Whom did I leave? Oh yeah, we covered almost everybody. Oh yes, the most problematic person in the season is Duty. सो पूरे शो में ड्यूटी की मम्मी बंगाली में बात कर रही थी कि वो ड्यूटी की पत्नी अपने बच्चों को नहीं देखती है अच्छे से, एंड शी इज़ नॉट अ गुड मॉम एंड ऑल ऑफ दैट. तो आप क्या कर रही हैं आंटी? आप तो अच्छी दादी बन रही है ना. गुड फॉर यू, I think. And then this lady Rihanna is stuck in a marriage जिसमें she is not able to divorce him as she is dependent on him financially, ये वो. But at the end of the show and at the end of everything, we know that all the show is scripted. But again, I would like to raise this point that many women are, married and then get financially dependent on their husbands, and
lot of noise is being made on social media. For example, recently I watched this 370 rupees meme and I was not able to understand, and I had to YouTube it. So yes, we know where this mindset comes from and all of that, but their story seemed real to me, because sometimes people get married and then maybe they are not ready for marriage and kids, but they have it. Okay, fine, that is something else to discuss. So coming on to the show, there was no plot, there is no storyline. We cannot say that why something is happening, but it happens and you are hooked to it. And the set is very gaudy, tacky. I would not say that oh my god what a set at all. सब लोग अच्छे से स्टाइल है, बट ये सबको आप देखो तो कुछ शॉकिंग कंटेंट ही चल रहा है। ये तेजस्वी प्रकाश ने एक सीन में पता नहीं क्या ही अपने आँख पे वो आईलेट सा लगा रखा है, ओ या, और बीच में वो एस्ट्रोलॉजर भी इंट्रोड्यूस होती है जो कि कहती है आप कोई पेपर साइन करने वाले और ये करने वाले वो करने वाले, जब तुम्हारे पास इतना ही नॉलेज था तो तुमने पहले क्यों नहीं बता दिया। एनीवेज, आप इनका ये जो वार्डरोब है वो एक कुछ अलग ही तरीके का है, मतलब एकदम आउट ऑफ द बॉक्स गॉडी, एकदम क्या बोलूँ मैं, बहुत ही टैकी चमकीला चमकीला कपड़ा सभी ने पहना है। ठीक है, मतलब अमीर है पर न्यू मनी है, ओल्ड मनी नहीं है। बहुत ही ट्रैशी ड्रेसिंग सेंस है टू बी ऑनेस्ट। और उसके बाद फिर मैं जब इनका कोई पार्टी, और ही पार्टीज विद द गर्ल्स, ही लाइक्स टू पार्टी, आई मीन इससे अच्छी पार्टीज तो कॉलेज के बच्चे कर लेते हैं इंडिया में टू बी ऑनेस्ट। पर ठीक है, गुड फॉर देम। एंड ये पता नहीं तेजस्वी एंड करण कुंद्रा कौन सी ज़िंदगी बनाने वहाँ पर गए हुए हैं, पर या मतलब समथिंग लाइक दिस फॉलोज, जहाँ पे 5 चीज़ें जो मुझे याद रह गई है, एंड दैट मेक्स नन ऑफ द सेंस, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का, इज़ वो तेजस्वी एंड करण कुंद्रा का वो वाना बी प्रपोजल, जहाँ पे एवरीथिंग इज़ सो स्क्रिप्टेड एंड आई डोंट फॉलो देम ऑनेस्टली, बट whenever I follow some kind of reality show जहाँ पे वो दोनों में से कोई एक होता है, हमेशा यही सुनती हूँ कि इनकी शादी होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, और फिर रेडिट पे मैं पढ़ती हूँ कि इनका तो PR क्यूरेटेड ही इमेज है, ये है वो है। फाइन, ठीक है, बट आई नो मेनी पीपल दे आर क्वाइट फैन ऑफ दीज सेलेब्स एंड दे क्वाइट अडोर देम, जिसको निब्बी पे शायद माई बैड, जिसको रेडिट पे शायद 16 साल की निब्बी फैंस बोलते हैं। आई डोंट नो, बट अगेन येस, आई बिलीव कि वट एवर वी वॉच, स्पेशली इन इंडिया, सिनेमा and then reality TV, ITV, cricket, all these are quite a form of culture which is being formed here. So yes, so I was talking about 5 things which stayed with me. ये जो ट्विंस हैं जिस तरीके से बिहेव करती है, प्लास्टिक इज फैंटास्टिक, समथिंग विच इज़ लाइक यू नो इट स्टेज विद यू। एंड देन वो देर इज़ दिस पामेला पम्मी जो कि दैट्स व्हाई ही हैज़ नॉट प्रपोज्ड यू। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि क्या मतलब है सीरीज़ का, बट अगेन थर्ड थिंग विच स्टेड विथ मी वॉज, हाँ, दिस थिंग आई वॉन्टेड टू टेल सिंस अ लॉन्ग टाइम। जब मैंने शो देखना शुरू किया था ना, देन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दीज कपल, सतिंदर सतपाल एंड हिज वाइफ। तो जहाँ पे सतिंदर बोलता है ही इज़ लाइक, उसकी इंग्लिश तो भाई माशाअल्लाह ही है, बट अगेन लास्ट में वो कहता है पैसा बोलता है, मनी स्पीक्स। सो येस, सतिंदर सतपाल पैसा तो आपका बोलता है, एंड इज इंग्लिश। देन बिंदा का वो कोल फेस जहाँ पे उससे एम्ब्रायोज भी फ्रीज करा रखे। मुझे लगता है कि जितना कोई अमीर होता है ना, उसका दिल उतना ही मरा हुआ होता है, एकदम क्या ही बोलूँ, मतलब अंदर से मर चुके होते हैं वो लोग। मे बी मैं गरीब हूँ इसीलिए आई वुड लाइक टू रोमांटिसाइज माई पॉवर्टी, बट या आई फील लाइक दैट। बट देन अगेन या द थिंग विच स्टेड विथ मी, ये बॉलीवुड डज, वी डोंट गो टू बॉलीवुड, बॉलीवुड कम्स टू अस। मे बी सब ने बहुत सारे पैसे लेके कैमियोज किए होंगे एंड टू क्रिएट अ हाइप, एंड देन व्हाट एल्स। हाँ, हर जगह तो यही बात हो रहा है ना कि अबाउट दिस कपल, ITV कपल, तेजस्वी एंड करण एंड ऑल ऑफ दैट, बट प्रॉब्लमेटिक, इट वॉज क्वाइट प्रॉब्लमेटिक शो विथ बहुत पेट्रियार्की था, स्पेशली विथ
सतिंदर और सब लोग प्रॉब्लमेटिक ही है। सतिंदर और बिंदा में सतिंदर ने दूसरी शादी कर लिया बिंदा से। बिंदा कहते हैं मैं उसके लिए पैसों के लिए नहीं हूँ, पर अगेन वो हर साल 4 किलो सोना उससे लेती है और बाकी उसका पूरा लाइफस्टाइल वही फंड करता है, तो ठीक है भाई, मतलब ये भी एक मैरिज है। उसके बाद दूसरा कपल है ये तेजस्वी और करण का, जिसके बारे में मैंने वीडियो में बोला ही है कि हाँ उनका पीआर क्यूरेटेड है, ये है वो है। फिर तीसरा कपल वो है फॉर्मूला और उसका एक्स बॉयफ्रेंड का, जहाँ पे शी लिव्स ऑफ हर एक्सेस मनी, आई डोंट नो, ओके गुड फॉर हर। एंड देन देर इज दिस ट्विंस जो मैन हेटर है, दे लिटरली हेट मैन, एंड बकरी ले आते हैं और बकरी पॉटी कर देती है इनके पूरे घर पे। ठीक है, ये भी अमीरों के शौक होते होंगे। और फिर द्विति और इरियाना कुछ बोलना ही नहीं है, मतलब गुड गर्ल टेक अ डिवोर्स फ्रॉम हिम, मे बी अगर स्क्रिप्टेड है तो भी या आई थिंक यू डिज़र्व बेटर। एंड देन हु एल्स, हाँ सबसे सेन जो कपल था वो था वही डानूबे चेयरमैन का बेटा और बहू। लोग कहते कि वो लोग शो के स्क्रिप्ट राइटर्स है, मुझे नहीं पता था शो देखते वक्त इतना इन्फॉर्मेशन टू बी ऑनेस्ट। पर जब मैं शो देख रही थी तो एक्चुअली में अमीर मुझे वही दोनों लोग लगे थे। दे वर लाइक सोफिस्टिकेटेड, पॉइज, क्लासी, जो लग रहा था कि हाँ मे बी दे रियली हैव मनी, ओल्ड मनी। बाकी नया नया पैसा तो सबके पास आ जाता है, भगवान करे मेरे पास भी आ जाए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई रिव्यू. This is the first video which I have made, which is in a long form, and I have reviewed this. I know this is not perfect, this is not even good, but I wanted to start and I have started. So I don't know how many people will be watching this, maybe 2, maybe 5, maybe I will share this to my sister, maybe to my husband, maybe to my friends. पर जो भी ये देख रहा है, if you like it, please support, please like, share and subscribe. So yes, at the last I would like to introduce myself. I am Muskan and I will keep on making review videos. So take care, toodles, bye bye.